Welcome to Theory of Biology. This is part 2 of the biotechnology series. So in this video, we will talk about the principle of biotechnology along with the definition which is given by the EFP, and also we'll discuss about what are the various tools that we are going to use in the genetic engineering. So let's start this. So when we talk about the biotechnology, so the correct definition, the official definition of the biotechnology, it is actually given by the European Federation of Biotechnology. So according to this definition, it is the integration of the natural science, cells, the parts of the cells and the molecular analogues for the products and the services. So basically हम यहाँ पे the definition of the biotechnology, it covers the two important factors. The first one is कि we are going to use the living organism. We will use the biological agent, and second one, by using these biological agents, we will create the services and the products for the well-being of the humans. So this is the complete definition of the biotechnology. In a simple language अगर मैं आपको explain करूँ तो यहाँ पे हम biological agents को use करने वाले हैं और उन biological agents से कुछ services या फिर कुछ products भी बनाएंगे जो कि हम human welfare के लिए use करने वाले हैं. I hope this definition is clear to you. So many of times this definition, ये जो आपके पास ये जो इस definition में जितने भी terms यानी कि जो words use हुए हैं ये काफ़ी बार exam में पूछ लिया जाता है. तो this definition is very important to learn to you for your examination purpose. Now the next is the प्रिंसिपल्स. अगर हम प्रिंसिपल की बात करें तो बायोटेक्नोलॉजी में इन्वॉल्व है मेन टू इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल. द फर्स्ट वन इज द जेनेटिक इंजीनियरिंग. जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम बात करते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की. रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में हम जेनेटिक मटेरियल यानी कि डीएनए या फिर आरएनए को मैनिपुलेट करते हैं या फिर कह सकते हैं कि हम उसको ऑल्टर करते हैं और किसी होस्ट सेल के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं सो दैट इट कैन एक्सप्रेस इटसेल्फ एंड द होस्ट ऑर्गेनिज्म इट विल गिव द डिफरेंट फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन. मैं आपको थोड़ा सा एक बेसिक डायग्राम यहाँ पे आपको बताना चाहूँगी कि सपोज कर लीजिए कि ये हमारे पास एक पीस ऑफ डीएनए है और इस पीस ऑफ डीएनए को हमें किसी वेक्टर के अंदर इंट्रोड्यूस करके, यानी कि इस डीएनए को, ये जो आपका डिजायर्ड पीस ऑफ डीएनए है, इसको desired DNA, what we have done, we have inserted into this vector. Vector is a piece of DNA. हम types of vectors को discuss करेंगे later on. Then we are going to transfer into the host cell, which could be any, maybe plasma, bacterial cell, or we can say the plant cell or the animal cell. But specifically हम यहाँ पे जो most commonly use करते हैं वो E. coli cell use करते हैं. तो जब भी ये recombinant DNA आपके पास host cell के अंदर जाएगा तो obviously the DNA, the desired DNA, it will express itself. So this complete process we will discuss about in the genetic engineering. इन द बायोकेमिकल इंजीनियरिंग बेसिकली इसमें हम बात करने वाले हैं वो सारी स्टेराइल कंडीशन को मेंटेन करना ताकि किसी भी अनडिजायर्ड माइक्रोब की ग्रोथ ना हो, ताकि हम लार्ज क्वांटिटी में जो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स हैं उनको बना सके. जैसे कि हम बनाते हैं, इसमें हम वैक्सीन्स बनाते हैं, एंटीबायोटिक्स का फॉर्मेशन होता है, एंटीबायोटिक्स, वेरियस एंजाइम्स, बहुत सारे ड्रग्स एंड मेडिसिन्स. सो बाय यूजिंग दिस sterile, by maintaining in this complete process, we will maintain the sterile, the microbial free condition, the sterile condition that will not allow the growth of the unnecessary microorganism, that will allow only the desired microbe to grow, and we will make a huge product out of that material, and these are the products which we will actually synthesize after this complete process. Now in this after discussion about the principle of the biotechnology, now let us move on to the various steps that are going to be involved in the recombinant DNA technology. So there are some tools of recombinant DNA techniques या technology. हम यहाँ पे बात करने वाले हैं वो कौन कौन से important key points है या key tools है जो कि recombinant DNA technology में use होने वाली है. सबसे पहले हम बात करेंगे restriction endonuclease enzyme.
रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, जिसको हम मॉलिक्यूलर सीजर्स भी बोलते हैं। इस पर्टिकुलर एंजाइम की डिस्कवरी जो है आपके पास 1970s में एक बहुत ही मेजर इन्वेंशन यानी कि स्मिथ नाथन ने की थी, जिनको नोबेल प्राइज भी मिला था 1978 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की डिस्कवरी के लिए। इसको हम सेपरेट डिस्कस करने वाले हैं। देन वी विल यूज द लाइगेज एंजाइम। लाइगेज एंजाइम इज यूज्ड टू सिंथेसाइज टू बेसिकली टू लाइगेट द डीएनए, यानी कि जब भी हम अपने वैक्टर को यूज़ करेंगे और उस वैक्टर को जब हम कट करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, क्योंकि ये मॉलिक्यूलर सीजर है, ये डीएनए को कट करेगा एट अ स्पेसिफिक साइट, एट द रिकॉग्निशन साइट। तो ये लाइगेज एंजाइम हमारे डिजायर्ड डीएनए को उस वैक्टर के साथ अटैच कराने में अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। द नेक्स्ट इज द पॉलीमरेज एंजाइम। पॉलीमरेज एंजाइम जो है जिसमें हम जब रेप्लिकेशन प्रोसेस को डिस्कस करते हैं तो हम यहाँ पे पॉलीमरेज एंजाइम 3 डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलीमरेज एंजाइम को डिस्कस करते हैं। तो वहाँ पे इसी तरीके से ये रिएक्शन को पॉलीमराइज कराने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट इज द क्लोनिंग वैक्टर। वेरियस टाइप ऑफ वैक्टर्स वी आर गोइंग टू बी यूज्ड, जैसे कि हम कुछ वैक्टर्स यूज करेंगे प्लाज्मिड से, जो कि बैक्टीरिया से हम एक्सट्रैक्ट आउट करेंगे। हम कुछ जो वैक्टर्स है वो वायरसेस से बनाएंगे, कुछ यीस्ट से बनाएंगे, कुछ प्लांट से बनाएंगे। तो इस तरीके से हम डिफरेंट टाइप ऑफ क्लोनिंग वैक्टर्स को यूज करने वाले हैं। नेक्स्ट होता है होस्ट ऑर्गेनिज्म। मोस्ट ऑफ द टाइम हम जिस सेल को यूज करते हैं दैट इज ई कोलाई, बिकॉज इट इज द मोस्ट फेवरेबल होस्ट सेल, जो कि अलाउ करता है डिजायर्ड डीएनए को रेप्लिकेट करने में, ताकि हम बहुत ज़्यादा नंबर में या क्वांटिटी में अपने डिजायर्ड डीएनए को एक्सप्रेस कर पाते हैं। सो इन द नेक्स्ट वीडियो विच इज पार्ट 3 वी विल गोना डिस्कस about the various restriction endonuclease enzyme. Thank you so much.